Good morning, students. Today we discuss halides of phosphorus. Halides of phosphorus, it means PCl3 and PCl5. Why these two types of halides are formed from phosphorus? Because in the group 15, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, and the general electronic configuration is Ns2 Np3. So outermost orbit contains 5 electron and 3 electrons are required to complete their octet. It means या तो ये अपने 5 देगा या 3 किसी से लेगा, तब ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए. इट मीन्स it shows variable oxidation state, and when we move from top to bottom, number of shells are increases. In case of phosphorus, 15 means 3D is present, and then when the D accommodation is present, so it shows +5 and +3 both. Yeah, +5 or -3. When we move from top to bottom, +5 oxidation state decreases and +3 increases. So it forms two types of halides. One is 3-case, that is called PCl3, and another is +5, that is PCl5. This is called phosphorus trichloride and this is called phosphorus pentachloride. Both are simultaneously shows reactions. So we decide कि दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस करें. पहला PCl5 प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस. व्हेन वी डिस्कस दैट एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, देन वी डिक्लेयर्ड कि येलो फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस इज more reactive forms than red and black. So it is prepared from white phosphorus with chlorine, 6 moles of chlorine, then it forms PCl3, and when yellow phosphorus reacts with 10 moles of chlorine, then it forms phosphorus pentachloride. Similarly, when yellow phosphorus reacts with thionyl chloride, then it forms PCl3, SO2 and S2Cl2, and when this phosphorus is further reacts with SOCl2 यानी thionyl chloride, sulfuryl chloride, then it forms PCl5. क्लियर? तो ये दो प्रिपरेशन इक्वेशन, एक जिसमें येलो फॉस्फोरस क्लोरीन से कर रहा है जो दोनों में कॉमन है, एक जिसमें हम एक में thionyl क्लोराइड यूज कर रहे हैं और दूसरे में सल्फ्यूरिल क्लोराइड यूज कर रहे हैं. अब प्रॉपर्टीज, PCl3 is colorless oily liquid whereas PCl5 is yellowish white powder. Next property, PCl3 is hydrolyzed with water. When it hydrolyzes with water, then it forms oxo acids of phosphorus. This is called oxo, यानी phosphoric acid, and HCl is removed. And when PCl5 is hydrolyzed with water, so what happen? Similarly, जैसे यहाँ पर आपने इसको मेकअप किया है, वैसे ही प्रोडक्ट यहाँ पर मेकअप करिए, तो अब आपके पास क्या क्या रहेगा? एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खाली. यहाँ पर PCl5 में 5 Cl are present and both the Cl are not in equivalent nature because octet in the outermost shell phosphorus contains 5 electron, and if all the 5 chlorines are equally shared with phosphorus, then the outermost shell contains 10 electrons. 10 electron is not stable, so this structure is not right form of PCl5. PCl5 exists as like this: 1, 2, 3 pyramidal structure, and one is axial and one is below the plane. It means in 3 Cl की bond length as compared to these 2 Cls are different, so this both the 2 chlorines are different nature as compared to the 3 Cl atom. So what is the final product of the equation is PCl5 is reacts with H2O, so POCl3 plus HCl. Clear? Because of its different structure. यहाँ पर पांचों Cl एक जैसे नेचर की नहीं आएंगी, इसलिए हम इसको एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते. अब हाइड्रोजन इस साइड में 2 है तो इसको भी मैंने 2 कर दिया. देन द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अगेन नेक्स्ट रिएक्शन,
PCl3 and PCl5 both reacts with organic acids. Organic acids मतलब like acetic acid, ethyl alcohol. So first we discuss with PCl5 and another we discuss with PCl5. तो acetic acid reacts with PCl3. तो यहाँ पर बच्चे तीनों Cl फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाएंगे, तो 5 और 3 8, यानी ये तीनों Cl एक जैसे नेचर के। तो जब भी ये रिमूव होंगे ये तीनों Cl एक साथ जाएंगे। तो जब आपने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, एसिटिक एसिड इट मींस CH3COOH, इसमें 3 Cl एक साथ जाएंगे, इट मींस 3 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो मैंने इसको भी 3 कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर H3, ये वाले P को रिमूव कर दीजिए, PO3। अब क्या बचा मेरे पास, CH3COO के कितने मोल्स, 3 मोल्स। यहाँ क्लोरीन के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स। सो वी फाइंड 3 मोल्स ऑफ CH3COCl. दिस इज कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड। क्लियर। इसी तरीके से बेटा इथाइल अल्कोहल की भी आप रिएक्शन कराते हैं। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3, सो हियर इज 3 मोल्स, तो दिस इज आल्सो 3। ये 3 हाइड्रोजन इस 3 Cl के साथ एक ऑक्सीजन लेकर के रिमूव हो जाएगी, तो H3PO3 एंड रिमेनिंग ये पूरा OH मेरा सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, इस 3 Cl से। देन वी फाइंड 3 मोल्स ऑफ C2H5Cl यानी क्लोरोइथेन। अब हम इसके शेप को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5। Cl में 7 7 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 लोन पेयर यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा। इट मींस 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। सो द शेप इज पिरामिडल शेप विथ 1 लोन पेयर। एंड द हाइब्रिडाइजेशन, जितने सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होगा उतने नंबर ऑफ उसमें ऑर्बिटल्स होंगे। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 1 2 3, और एक इस लोन पेयर के कारण टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 4। सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। क्लियर। सेम आप प्रोसीड कर जाइए PCl5 के साथ। PCl5 ऑल्सो रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंटेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंटेंट्स जो मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं वही आप यहाँ पर भी करिए, PCl5। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि PCl5 में अब हमें 3 Cl एक जैसी हैं, जो कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर से डिफाइन करा, और 2 एक जैसी हैं। इसका मतलब जब भी ब्रेकअप होगा ये 3 एक तरफ जाएंगी और ये 2 एक तरफ जाएंगी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। चलिए अब हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते थे। पहला तो यहां से ये पूरा PCl3 इस एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट फॉर्म्स POCl3, यानी एक ऑक्सीजन मेरी कंज्यूम हो गई। अब मेरे पास क्या बचा, 2 Cl बची। क्लियर। और यहां पर हमारे पास CH3CO बचा, तो हम क्या बना देंगे, CH3COCl। कितने मोल्स, 2 मोल्स। तो रिएक्शन बन जाएगी CH3COCl प्लस POCl3। पर यहाँ पर तो 1 था, तो आप बैलेंस कैसे करोगे, एक हाइड्रोजन भी मेरे पास है, इसको आप HCl फॉर्म में रिमूव कर दोगे। आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए बच्चा। यहाँ पर एक CH3CO था, यहाँ भी CH3CO है। यहाँ पर एक Cl ये था, एक Cl ये लगाया, टोटल 5 Cl थे, तो 3 4 5, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 1p। तो ऑल द कंटेंट्स आर सेम। सिमिलरली व्हेन इट रिएक्ट्स विद एथिल अल्कोहल, तो C2H5OH reacts with PCl5, again it is break up into PCl3 and PCl2. तो PCl3 reacts with this oxygen, so it forms POCl3 plus HCl and C2H5Cl. So these are the reaction which shows PCl3 and PCl5 character. And the last and important topic आएगा बेटा structure of PCl5। जैसे मैंने PCl3 का यहाँ आपको दिखाया है, PCl5 के में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं 2 डिफरेंट कंडीशंस में। पहला वेपर फेज में और दूसरा सॉलिड फेज में। लेकिन PCl3 का एक ही स्ट्रक्चर होता है। तो PCl5 में जब हम स्ट्रक्चर्स को देंगे तो गैसेस एंड लिक्विड फेज में इट शोज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इन
gaseous phase, it shows trigonal bipyramidal, लाइक जो मैंने अभी आपको बनाया था, बीच में P, एक Cl, एक Cl, एक Cl और एक above and एक below the plane. This is the trigonal bipyramidal structures, जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो हैं वो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ के होंगे, जिसमें 2 एक्सियल, these 2 are axial and these 3 are equatorial. Clear? But in solid form it exists to form cation and anion. तब ये वेपर फेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तब ये आयनिक सॉलिड के फॉर्म में होगा PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि PCl3 में केवल एक स्ट्रक्चर होता है जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। लेकिन PCl5 का जब भी आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा बेटा, तो जब आपसे गैसेस फेज का कहा जाएगा तब आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाओगे, जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करोगे, तब गैसेस फेज में एक ही शेप होगा। जबकि अगर हम सॉलिड फॉर्म कहेंगे तो सॉलिड फॉर्म जो है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और आयनिक फॉर्म का मतलब हो गया कि आयंस का मतलब हो गया वन इज कैटायन एंड अनदर इज एनायन। 2 डिफरेंट आयंस आर प्रोड्यूस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन का शेप डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू एनायन। कैटायन में हाउ मेनी Cl आर देयर? 4 का मतलब होता है 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब 4th ऑर्बिटल, एंड देन द शेप इज sp3 विथ 4 बॉन्ड्स। अब यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, तो अगर PCl5 आपने sp3 हाइब्रिडाइज करा, देन द शेप इज tetrahedral. In case of PCl6, how many Cl are present in the PCl6? 6 का मतलब हुआ कि 6 इसमें सिग्मा बॉन्ड शो करेगा, 6 बॉन्ड शो करेगा, इसका मतलब शेप इज octahedral. So the hybridization is 6 में क्या हो जाएगा बेटा? 3 और 1 4, sp3 बचे कितने? 2 d2, sp3 d2 2 3 2 5 और 1 6 सिग्मा बॉन्ड इसमें थे, 4 इसमें थे। तो इसमें जब हम आयनिक यानी सॉलिड फॉर्म्स ऑफ PCl के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आयनिक फॉर्म में होगा, और आयनिक फॉर्म में होगा तो 2 इसमें आयंस बनने होंगे, वन इज कैटायन और अनदर इज एनायन, और दोनों की ही शेप डिफरेंट होंगे। जब दोनों की शेप डिफरेंट होंगे तो कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट होगा और एनायन का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द PCl5 and the topic is halide of phosphorus is completed. Thank you.